Assalamu alaikum everyone. This is your host Shahrukh Ali back with another episode of interview series. आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं that is डॉक्टर अली अहमद जैदी साहब। बेसिकली तो ये पाकिस्तान से हैं लेकिन काफ़ी टाइम से यूके में अपना बिजनेस कर रहे हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ अ पीएचडी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इनके पास दो कंपनीज हैं राइट नाउ यूके में दैट इज विंसन टेक्नोलॉजी एंड विंसन एजुकेशन। तो आज हम डॉक्टर अली से जानेंगे कि विंसन टेक्नोलॉजी क्या है, विंसन एजुकेशन क्या है एंड पाकिस्तान के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो लेट्स ब्रिंग टू यू डॉक्टर अली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम. Thank you, Shahrukh, for inviting me for the interview and a brief introduction. Your question was that what is Vincent अस्सलाम वालेकुम Technologies सर। and what is Walaikum Assalam. And your question was about Vincent Technologies. Vincent, I created this in Islamabad way back in 1990, and then we moved to UK when I came here for further studies, and in around 1999. And since then, it is working as a research and development company, a company whose basically main task is to do the research and development and support industries. And we have done many high volume, high size projects, namely just like we have designed rooftop control system for Range Rover, a rear wheel steering system for Mercedes, and we have designed flood management, flood and drain management for hydroponics, and for McLaren climate control. In Pakistan, we were the first one to start with the vehicle tracking system and having an office in around 12 countries, 12 cities of Pakistan. And a force of 500 people were employed with me. And at the same time, we were having office in Saudi Arabia, UAE, Germany, USA, Canada, and all other places. Right now, recently, we moved back to Pakistan for settling some like businesses over there. And meanwhile, we have done projects worth of 1,000 million related to army and to Sindh police and other forces. And currently we have a virtual reality gaming center, which is under construction right now. And we have got a factory over there for gaming design for virtual reality. That is a part of Vincent Technologies. Coming to Vincent Education, when you belongs to basically a circle of people who are highly literated and they are mostly doctors because they are their colleagues, they've studied with you and they have grown with you. So I saw that most of the guys who are with me, they are gone into education. Either they are right now vice chancellors in some different universities, like just like the head of LSE, like London College of Economics, he's a very good friend of mine. And then a lot of other people like who are basically in education right now in Pakistan. So it was our passion. So we invested into a university and we have started a Center of Emerging Sciences at NH University. Our goal is to basically train Pakistanis so that they can provide better services to the country and also better services to contribute in the exports of Pakistan. So this is the main goal. And with this goal, we came to Pakistan and we are investing heavily into human resource development, training, and educating. So I consider education and training as a two different things. That's why in Urdu we call it talim or tarbiyat. So education they are getting from universities, whatever it is, but they need good training to actually perform high quality work to contribute to the society and contribute in earning foreign exchange for Pakistan. This is the main goal and aim. Can you give thing? It's a massive goal for everyone. How can we achieve it? Like, Huh. It's a very whenever I talk to people, they are all interested that they know that this is the goal for everyone. You have very rightly conveyed this sentence that it's a goal for everyone. Everyone wants same goal, but nobody actually is following the right path. Some people are traveling around in a circle and coming back to the same position until and unless you open the doors of vendor industry, which is basically into small and medium business development, you will not be able to succeed. I go back in the history of China, and when it was like in
96, 91, 92. We used to go to Hong Kong, China, other places because I was chief engineer for LG company, which was at that time was called Gold Star, and its head office was in Karachi on Amir Khusro Road. And I was the first few guys who appointed over there. And then I went to Korea, and then I went to Hong Kong. There I saw that in a story building, there are different rooms, and each room is behaving like an electronic industry. Each room, one room they're manufacturing watches, in one room they're manufacturing headphones, in one room do. So I learned this thing that they are not working in big chunks, like they are not like some very very big companies are operating. Big companies are operating in a different way, but small companies which are basically contributing in the development and export of those things, which are very actively working. So Pakistan needs to have a culture like that, where people should be aware of this thing, that job is not the main source of income. A business is the main source of income, and they should train to produce things. They should not be given only the certificates and the degrees from the universities. They should be trained properly to produce something. And then once they start producing, they can better earn good livelihood for themselves. They will be get rid of the jobs, and they can export those items. So here the question was that how? So first step is to train the people in the right direction so they can start producing by themselves, and they should not, and discouragement for the imports of small items. Then it will turn into big items. Always remember, big industries only survive on the basis of the vendor industry. A big industry is not going to manufacture anything. Just like if Toyota car is making cars, they are not going to buy all the parts. They would be looking forward somebody supply them the indicator, somebody supply them with the steering, somebody supply them with the brake pads and shoes. So this is a vendor industry. Vendor industry is the backbone of the mega industry, which is basically operating in any country. So we should discourage imports. We should encourage made in Pakistan products, and we should first at our end start buying Pakistani products. If there are two things, one is Pakistani and one is Chinese, Japanese, or any other, prefer, if even it is lesser in quality or something, even then try to buy Pakistani products, and don't disgrade Pakistani people, because once you start buying, their livelihood will increase. They will improve their quality by themselves. So we have to help each other. I must say that you should go for be Pakistani, buy Pakistani now. Once this culture is developed, then you will see the quality will be up to the mark, and you will start exporting. So this is the way forward. If you follow this way, you will be successful. If you are not going to follow this way, for myself, I prefer to buy an imported thing, but I'll give you a lecture to buy a local thing. That's not right. From the top to bottom, it should be the same policy for everyone. So starting from this, that be Pakistani, buy Pakistani, improve the quality of Pakistani product, and then jump into exports. This is the way forward. Okay. If we talk about vendorship, don't you think it required some finance? And people of Pakistan don't have such much that finance in their hands. So what you can tell about Yes, this? yes. You have asked the very, very pinching question. People of Pakistan, they are basically into a very bad shape. And the bad shape is just because of those who are basically importing a lot of things. I can answer you in three ways, and I can give you a solution as well. But the main thing is still going to be dependent on the Pakistani people, whether they get the message or not. Number one, once there was a German Hitler, like just like Hitler, somebody, people asked that how you will control your population. There's a huge, big crowd outside there. So how you will control them? He said it's very simple, and he asked to bring a small like hen chicken, and he said that keep it 2 days, don't give any food to this chicken, and he start just taking off each and every feather of from the body, and the chicken was just thriving like this. Is just too much disturbed. So it just took all of them, यानी उन्होंने उसके सारे बाल नोच लिए और एक तरफ डाल दिया कोने में. 2 दिन का खाना नहीं देना. After 2 days, the meeting was there. He came with a bag of some food, and then he just put food somewhere. He saw that the chicken crawl and come to that place. He just put a little bit, and then he moved to another way, somewhere else, and he put some food over there. The chicken crawls.
This is how to control the nation. If you let them rich, you will not be able to catch them. अगर वो मुर्गी सही सलामत होती उसके हाथ ही नहीं आती. Now, to control the nation, the big powers, they always play like this: keep the nation poor. So if you ask them to do anything, they will be able to do it. They will be following you because they need to survive. So for survival, you can just take them into whatever direction. This is one thing. But who is doing this? People can ask this question: who is doing this? How you can say that is simple? No, it's not. I didn't mean that my government. The West is doing it. They never let you learn technology. They never let you learn that how to produce something, because you are thriving in technology. You don't know what the technology is. None of the Muslim countries are manufacturing any kind of mobile phone. आप किसी एक मुस्लिम मुल्क का अपना मोबाइल फोन जो मैन्युफैक्चर करता हो बता दें. LCD स्क्रीन बनाता हो, आपके घर में टीवी, रिमोट कंट्रोल, हर चीज या वेस्ट से आती है या चाइना से आती है या तो साउथ ईस्ट एशिया होगा उसके अंदर. इवन फिलीपींस, इवन आप सिंगापुर जस्ट केम अप लाइक इन 1964 इंडिपेंडेंटेड, इसकी इंडिपेंडेंस 1964 से. उसके पास आपको हर चीज मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, आपको बांग्लादेश में नहीं मिलेगी, आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और तमाम मुस्लिम कंट्रीज में नहीं मिलेगी, बाकी हर तो आपको हासिल नहीं करने दी जा रही. अब आपको मेहनत करनी है. नाउ यू हैव टू वर्क हार्ड टू एक्चुअली अचीव टेक्नोलॉजी. वंस यू स्टार्ट अचीविंग टेक्नोलॉजी, then technological skills cut down your foreign exchange, because most of the foreign exchange is going into electronic items. Most of the foreign exchange is not going into anything else. Like oil is definitely one thing which you have to import, but most of the things are coming because you are not producing any single piece of electronics in Pakistan, and everybody is having a mobile phone in his hand. So if we just consider that how many number of electronic gadgets are coming. So once Muslim countries, and especially Pakistan, which is basically a nuclear power, we should work hard to attain this level. Now, second thing is this, that if once you are capable to do this, then you may be exporting. Your per capita income will increase, because a lot of people, just imagine, there are millions of mobile phones out there. If there are factories, so how many factories needed to provide this much number of quantity of mobile phone? Each and every mobile phone is starting from 10,000 to 100,000 rupees. How much money can be saved into this area? And then how many jobs will be occupied into this? So why people are not concentrating on this area? Why they are not going for electronics manufacturing? Because I belong to electronics field. I have done PhD in artificial intelligence, my computer sciences, master's in computer sciences. So I do understand the need of this thing. So this is why we have started a program which is called Product Development Certificate. The same program that is Oxford University is offering, Cornell University is offering, Cambridge University is offering, Bristol University is offering. Every single university offers a program. This is bachelor's, postgraduate program, which is called Product Development Certificate. Why they offer this? Because they are preparing graduates to jump into the field of doing business. A product development means they take one project as a product, and then once they complete, they go to venture capitalists and startups forms over there. So the venture capitalists, because nobody has got the money, you are a student, you have just graduated, government has supported you to do the graduation. Now you are doing product development certificate. Once you develop the product, the course outline defines that how to find the market, how to market, how to place, how to find UI, user experience, UX, UI, and user interface, what to do, what are the markets, how to sell. Once you complete the product from A to Z and the product is ready, there are groups. I can name the Minerva Group, Magneto. I have got tens of groups which are basically investors. They have the money and they are looking for people to work, who can perform, who can double their money. So what they do, that double means that they invest into this and 5 years, 10 years plan, and then they take exit. So the company grows, their shares will grow, their shares will grow, they will grow, they will make more money rather than keeping in the banks. Invest where I'm living in London. If I keep my money in my bank, I get annual 2%, 1.5% to 2% return hardly. In Pakistan, if I keep my money in my bank, I can get 17%. Look at the difference. 17%. Nobody wants to work. Everybody just say that if I have so much 1 crore rupees, I'll get 1,70,000 a month from my bank in saving accounts. So why should I work?
So over here, if you have got 100,000 pounds, if you keep in the money, you will get 200 pounds out of it. So like, fuck off, I have to work. मुझे काम करना है, मुझे काम करना पड़ेगा. मैं इस पैसे को रख के नहीं खा सकता, इससे इंटरेस्ट मुझे इतना नहीं मिलेगा. So this is basically the crux. What the West has done, they have produced the value of human. Now, if you get training, you learn, you go to the Minerva group, you go and the university and the panels, they arrange, they inform you who are the venture capitalists and where you can find angel funds. This is where the people of Pakistan are not having any knowledge, number one, and the culture is not existing over there. The culture of trust is not existing over there in this way. So you will not find any venture capitalists in Pakistan, but you have to go and find that somebody finance you. And after all, even if you are a good candidate, you have made something product which can be sellable, even then you will not find a financer because nobody is interested in this way of going ahead. There are 10 cities in the world which are basically called the startup capitals of the world. They call startup capitals of the world where the businesses they start up. San Jose, Los Angeles is the top one, and then comes New York, and then comes London, Tel Aviv. None of the Muslim countries has got any city which comes into the top 10 startup capitals. Startup capital means those places from where the businesses grow. A new startup arrives over there, and then new arrivals, new businesses, they get support. And once they got support, they start working, and so once this culture develops in our Muslim countries, especially in Pakistan, so you will find that people will be doing better than what they are doing, and there will be far more less joblessness as compared to present right now. Okay, Dr. Saab, can you, apart from this product development course, can you enlighten other courses which you are offering? Basically, what we have done, we have started once again in Pakistan. After all, my family didn't want that we should concentrate on Pakistan, but we have our roots, and I'm dedicated Pakistani, worked in Pakistan Army. So my level of attachment and patriotism is very high. So I come to Pakistan, and once I started, I saw the people's condition. So I want to offer them some way to export. And some way to export is like exporting to European countries and any country, even if you can export to Africa as well, because it's not bound that you should export to UK, USA, Canada. Why not? If there are buyers in Kenya, you should sell them. If they are buying, they're giving you the money. Their money is also green, like dollars. So what is required that we should export? So I come with this passion to do it, and we started a course of virtual assistants, and that is basically coming in the background of selling on eBay. So what we have done, we have started this, and we are guiding people that how you can sell on eBay. So there was this course is available right now, and other than this course, we are offering funding. We are giving money to those who are producing in local quantities. We will make their products to come to UK, USA, Canada, Australia, Germany, and New Zealand, UAE for sales. And mostly these are the things which they can produce at home. Just like I remember by yourself, you are very hardworking. I know this, and I've seen your work. So I know that you guided me for few things which can be used. And that product was only for 100 rupees in Pakistan. And the selling price in UK was £6, which is right now 1,200 pounds plus. So that was an exciting thing. If I support people like you or people like those who are producing, for example, I know some lady who contacted me recently. She was working in a jeans manufacturing. She said that if I help her financially, she can produce jeans for me with a couple of other ladies from the Korangi area. They will join them, and they are not asking for big money. Just for the machines, they need money. So I feel very much enlightened that, okay, if I invest with them, let's say only 500,000 rupees, they can make 1,000 jeans per month. They are saying that they will do with 10 machines. I say, okay, go ahead. I give you some money and the machines so you can start making. And that is coming for me to 200 to 300 rupees costing of each jeans, which we can sell very easily for 20 pounds over here. 15 pounds, 20 pounds. So this is how, if every Pakistani thinks in this way, start supporting
those who can work from home, or they can run small factories and make it happen that they can export to UK, USA, other places. Your country, our country, will emerge like a new soul inside of it. It's a bounce back thing. I want a bounce back among the people, bounce back. So they should feel that, okay, now. So with your show, I offer anybody who's producing anything that he can think that he can sell in USA, UK, or he can sell some producing like uh, kids clothing, furnitures, Hmm. or small furniture. So I can do it. I will help them. I can give them finance. I can get their products to sell on eBay over here and other marketplaces. And we have started a new online shopping mall in Pakistan, which is coming soon with the name of WinBay. WinBay is the only place from where you can get the PayPal payment from anywhere. So it is starting from 1st of January. Then any money you want to collect from anywhere through PayPal, you can collect it through WinBay. And that is available. And the same WinBay will help you export your products to UK, USA, Canada, and other places. So this is a course which we are offering where we are helping people to actually enable learning skills into becoming a virtual assistant. And we are offering jobs as well along with them. So just today we have posted that we need riders. We need around 500 riders to cover all over Pakistan in different cities for this. So we have just floated. So people will apply and they will get the job. So this is one of the courses. Then another course which we are offering is especially for electronics project development. That comes into Learn and Earn program. Learn and Earn program is basically you select any product and we will teach you how to manufacture it and then you produce it for us. And we will buy it from you 100% and then we support you financially to manufacture those things. And with this, I have talked to some government officials. They are willing to even provide loans to those people who join Learn and Earn program, and they will be giving them 600,000 unsecured loan from the banks. And they say that, okay, we are happy that they are doing this product with you. So we will be the guarantor for the returning of the loan, and they will get the loan. They can work. So that is a Learn and Earn program, product development certificate, virtual assistant program for eBay, sell your product on eBay, and then virtual reality. Virtual reality, we have produced this virtual reality gaming center in Pakistan. We are manufacturing in Pakistan. Just in 2019, China sold $6 billion worth of virtual reality games. So now we come into this market, we start producing, but due to COVID, we have stopped a little bit, but we are going to recontinue it and we will be exporting it to worldwide market. So that is a course where people can come, they can learn how to design games for virtual reality, how simulators work. And if they wish, we can give them funding to install at in their towns and places, and they can return the amount of those games into small lease amount, like a small installments. And this way they can start earning, and they can learn, they can design their own programs. This is how we have 1,000 games available right now with us, which cost around $10,000 per piece. Oh, that's really great, mashallah. Ajay, Dr. Saab, we are talking about export. Don't you think it's a mishap of our country that any single university is not teaching the import and export course? It is not a part of any Yes, of education course. institute. What do you think about this? And I should not criticize our universities for this, but the main thing is this that I have seen, because most of my colleagues, which were at the time in university, and then when we were doing masters and PhD, so they were with us. Now I saw most of them, they are teaching, and their jobs are very much settled because they are earning good money from the university. They are least bothered what the student will do. Their job is to go into the classroom, teach them, and just come back. They are not bothered about it, that from where the student is going to pay the money. When we start these courses, I will come back to your question. These courses, so the product development course costs 50,000 rupees, and I have got so much of work to export electronic circuit boards, schematic diagrams, and there are freelancing platforms available which are offering jobs. And we sign contract with different companies that we can provide staff for them to design PCBs, because PCB is one of the best. When we started, and we say that, okay, there are foreign teachers, and the teachers, there is a cost involved. So we cut down the cost and we say, like, less than one semester fees
you have to pay and then you start earning immediately. And meanwhile, in the beginning, you can, in the mid of the project, you can start earning. None of them join because they're so much exhausted with their finances, paying so much heavy fees to the universities. They don't have the money. Even they come to me with a lot of problems of their own, because when I talk to somebody, I talk from my heart. So they feel that, okay, he is listening to us and we can tell him their problems. So they start telling me their problems. So when I understand their problems, I was just thinking that what is happening in Pakistan, because before 2 months, my field is electronics, I was working in a different area. Before 2 months, when we decided that we should offer these services and we start manufacturing products in Pakistan and get it to UK, so we thought that where we will sell. So we signed agreements with the top sellers of eBay and Amazon, and they agreed to buy from us and they agreed to list our products. So I need people. So I come into interaction with these guys and we plan this course to get people trained and coming. At that time, I come to know how much the problems are there in among the public. So they have got no money. Secondly, these subject of import and export, if it's an engineering university, they think that it is not their job. Whereas exporting and importing, business modeling should be part of every graduate program. Because if True. you are not going to teach them how to do business, see, if you are bound to think that after doing my graduation, I'll get a job, that thinking should not be there. You have to erase this word of or thinking from your mind that I am doing this engineering. After this, I will become chief engineer of XXX company. You have to erase this thing from here right now. It's good to have a job. But if, for example, you are not getting a job, what you will do? So you should be able to do something that can give you kitchen money to survive. And maybe that kitchen money will start producing cakes for you. It will not be remaining just kitchen money. It will become a leisure and pleasure for you. It will not only to bring food on your table for yourself and your family and your kids. No, maybe it will become that you can buy big cars with that, big homes with that money. Because skills, those who have got skills, they never go down because they can do something by themselves to make money. मैं एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ तुम्हें. हमने वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया. वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट ये था कि हर शख्स जिसने मैट्रिक इंटर किया है वो आए और आके सीखे कि रेफ्रिजरेशन किस तरह किया जाता है, एसी में गैस चार्ज किस तरह से होती है. एक जो गैस चार्ज होती है ना एसी में, उसके 1500 से 2000 रुपए लेते हैं. बेवकूफ अलग बनाते हैं. वो एक दफा मेरे घर पे एसी से ही नहीं चल रहा था, वो किसी को बुलाया उन्होंने, उसने आके देखा जी इसका कार्ड उड़ गया. वो कार्ड निकाल के ले गया और दूसरे दिन लेकर के आया, उसने 5,500 रुपए ले लिए. तो मैंने कहा तुम पुराना कार्ड ले आओ. कहता जी सर वो तो नहीं है मेरे पास. सर नहीं, क्यों नहीं है भाई? उसके ऊपर सिर्फ कचरा आया हुआ था, उसका रिमोट काम नहीं कर रहा था, जो उसका सामने स्क्रीन होता है IR उस तक पहुंच नहीं रही थी, और उस शख्स ने 5,500. तो झूठे लोग इस तरह के होते हैं. तो अगर आपको काम आता होगा ना, आप ना भी करें वो, अगर कभी ना कभी आपके काम आ जाएगा. तो देखो स्किल हासिल करना जरूरी है. और तमाम ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एक प्रोग्राम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मॉडलिंग और केस स्टडीज का जरूर होना चाहिए. आज के दौर में तुम चंद बातें समझ लो. पहले होते थे खानदानी रईस, नवाब होते थे, जिनके नवाबी फैमिली होती थी, उनके नवाब की औलाद होती थी, या वो बादशाह के होते थे या दूसरे लोग. तो रईस होते थे खानदानी, और वो जो है उन्हीं के बच्चे अमीर होते थे. तुम लोगों मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का बताऊं, तुम लोग हैरान रह जाओगे. जिस जमाने में एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन हुआ तो कैम्ब्रिज बनी. अब से ये 1000 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है. उसके साथ पानी की नहर जा रही है. वो पानी की नहर इसलिए थी कि गरीब लोग वहां ना जा सके, क्योंकि वो एरिया सिर्फ अमीरों के लिए था और ये हक सिर्फ अमीर का था कि वो तालीम हासिल करे. ठीक, अब ऐसा ऐसा करके तब्दील हो गई चीज, हर शख्स तालीम हासिल कर सकते हो. आज के दौर में जितने आपको सेंटी बिलियनर का मतलब वो जिन्होंने जिनकी दौलत 100 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुकी है. पाकिस्तान के बजट से डबल ट्रिपल उनकी अपनी पैसे हैं. ठीक है, यानी पाकिस्तान जो पूरे फेसबुक की आमदनी है ना, वो पाकिस्तान से 7 टाइम्स ज्यादा है पूरे पाकिस्तान की आमदनी से. ठीक है, तो आप ये समझें कि आप इसका समझें कि अब जितने भी सेंटी बिलियनर्स हैं ना, वो सारे वो लोग हैं जो गरीब हैं. अच्छा, और गरीब थे या वो नॉर्मल फैमिली से थे. आप उठा लें, जेफ बेजोस ले लें जो अमेजोन का मालिक है, मार्क जुकरबर्ग ले लें, आप टेस्ला का ये निकोलस टेस्ला की जो अभी टेस्ला कार आई है, उसके एलॉन मस्क को ले लें. आप सबकी हिस्ट्री पढ़ते जाए, मैं एक हिस्ट्री बताता चला जाऊंगा, आपको पता चलेगा सबका. तो ये दौर ही नीचे से आने वाले लोगों का था.
ये दौर है जिसने आपको दिया है कि अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता अपने फ्यूचर बनाने में, आपके पास एग्जाम्पल्स मौजूद है। क्योंकि टेक्नोलॉजी का रास्ता आप नहीं रोक सकते। दौलत आगे आगे झुक जाती है जब टेक्नोलॉजी आगे आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे यूथ को जब तक पता नहीं चलेंगी, जब तक यूथ के ब्लड में एक वलवला, एक जोश नहीं पैदा किया जाएगा, वो यही नौकरियों के उसमें चलेंगे। मैं इस वक्त ये कहता हूँ कि मैंने पिछले ही दिनों ऑफर किया कि भाई आ जाओ, मैं तुमको सिखाता हूँ, काम भी दे रहा हूँ साथ में। तो मेरे पास जितने लोग आए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी आए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी आए, उनमें से किसी एक शख्स में इतनी हिम्मत नहीं थी वो कहता कि सर मैं ये कोर्स करके आपके साथ आगे काम करूँ, हालांकि मैं उनको काम भी दे रहा हूँ। सब ने क्लेम किया सर हमें सब कुछ आता है। और जब मैंने उनको एक एक प्रोजेक्ट दिया ना, छोटे से छोटा प्रोजेक्ट दिया, तीसरे दिन भाग गए कि सर हमें ये तो सिखाया नहीं गया था। तो मैंने कहा भाई जब तुमको एक चीज बताई जा रही है, सीख लो, फ्यूचर बना लो। फ्यूचर नहीं बनाना उन्होंने, उनको मैं कहता ये 5,000 की नौकरी है, ये 10,000 की नौकरी है। अब 10,000 की नौकरी करें और आ जाए, तो 10,000 के इंटर्नशिप पे अगर आने को तैयार है, सीखने को तैयार नहीं, तो कल्चरली जो है ना हम इस वक्त बैकवर्ड हो गए। कल्चर में इंप्रूवमेंट लानी है। वो एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर मेरे फादर ने अपनी चीजें बेच के जो है ना मेरी फीस अदा की है यूनिवर्सिटी की, एनईडी की, वरना मुझे वो नहीं मिलता। और मैं 3 साल हो गया मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की घर में बैठा हूँ, मेरा बाप मुझे कोर्स नहीं देता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो गया तो उसे नौकरी नहीं मिली। अब तो मजाक उड़ने लगा फेसबुक पे कि जी अगर इंजीनियर है तो उसका मतलब वो बेकार ही होगा। हम्म। तो इस किस्म की चीजें तो हमको अब जो कुछ करना है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर बिजनेस मॉडलिंग जरूर पढ़ानी चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि बिजनेस से क्या क्या फायदे होते हैं। सिर्फ डिग्री नहीं बांटो, कुछ उनको तरबियत भी दे दो। तुम तालीम दे रहे हो, तरबियत नहीं दे रहे। तालीम किताबों से आती है, तरबियत काम करने से आती है। तो उनको आप प्रैक्टिकल वर्क और उनको तो ये गाइड नहीं करेंगे, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट। मैं लोगों को कहूँ कि तुम ये प्रोजेक्ट लो, इसे करो, मैं तुम्हें फंडिंग दूंगा और इसको एक्सपोर्ट करो और तुम्हारी फैक्ट्री मेरे साथ पार्टनरशिप में बना लो। मैं तुम्हारा वेंचर कैपिटलिस्ट हूँ, मैं तुम्हें वेंचर कैपिटल दे रहा हूँ। एंड दिस इज व्हाट माई पैशन। अब तुम्हारे तवज्जो प्रोग्राम के तवज्जो से किसी भी शख्स को कोई भी प्रोजेक्ट को बनाता है, फंडिंग चाहिए, आई एम अवेलेबल टू गिव एंड आई विल एक्सपोर्ट हिज प्रोडक्ट्स। आई विल मेक श्योर दैट हिज प्रोडक्ट गेट मैच्योर्ड इनफ के मार्केट उसे एक्सेप्ट करे और उसमें जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है पूरी करें और वो अपनी लेबर से उसको करे और बाद में उस प्रोडक्ट से पैसे भी कमाए और हम भी पैसे कमाए और मुल्क भी फायदा उठाए, डॉलर्स में पैसे कमाए। तो ये एम है। बिल्कुल यू आर 100% राइट। वी हैव गॉट नो कल्चर ऑफ टीचिंग business modeling, import export methods in our universities at any level. तो सर आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम है कि आर यू प्लानिंग टू डू सम इंपोर्ट एक्सपोर्ट टीचिंग और गिविंग सम कोचिंग रिगार्डिंग दिस? Yes, yes, ये पार्ट है पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट सर्टिफिकेट का पार्ट है, जिसके अंदर की आपको लास्ट में 3 चीजें सिखाई जाती हैं कि जब प्रोडक्ट पैकेजिंग वगैरह भी सिखाई जाती है, फिर उसके बाद आपको प्रेजेंट किया जाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के सामने और आपको मौका दिया जाता है अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने का। और वहां पर फिर जब इसके वो फाइनलाइज हो जाती है चीज, तो जो बिजनेस मॉडलिंग बनती है उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह से एक्सपोर्ट होगी, कौन लोग काम करेंगे, ये सारी चीजें, इसमें कार्डबॉक क्या होता है, इसके अंदर आपके पास एफबीआर से रजिस्ट्रेशन कैसे होगी एक्सपोर्ट के लिए और लाइसेंस किस तरह लिया जाएगा, सेल टैक्स किस तरह पे किया जाता है, जीएसटी किस तरह पे किया जाता है, जीएसटी के रिटर्न किस तरह से मिलते हैं, क्योंकि आप एक मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में जीएसटी अप्लाई होती है। तो आपने जो भी परचेज करनी है वो लीगल परचेज करनी है, उसकी जीएसटी रिटर्न्स मौजूद हो, उसे किस तरह आप अपने अपने इसमें आईआरएस में एंटर करेंगे, उसके किस तरह से जो है उसका क्लेम लेंगे और जब एक्सपोर्ट होगा तो आपको उस पर रिबेट किस तरह से मिलेगा, ये सारी चीजें। इसी तरह अगर आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में है तो कितने साल की आपको इनकम टैक्स की छूट है, क्योंकि उसके अंदर गवर्नमेंट खुद कहती है, उनको पता है कि अगर मैं सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे बाहर से डॉलर आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट वैसे ही कुछ नहीं कह सकती उसके ऊपर, क्योंकि डॉलर्स आ रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी भी नहीं लग सकता। तो वो कहते हैं ठीक है जी, जब ऐसा ही है तो फिर इंडस्ट्री को आप खुली छूट दे दें कि वो अपना पैसा तो डिक्लेयर करें। तो अब ये है कि वो पूरा का पूरा, तो उसमें भी हम गाइड करते हैं कि उसमें आपने किस तरह से ये क्लेम लेना है, किस तरह से आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं जो जीरो के जाएंगे, एसेट्स भी आपको कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा बल्कि रिबेट भी मिलेगा। ये सारी चीजें उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट कोर्स का पार्ट है, उसका नाम ही है प्रोडक्ट डेवलपमेंट सर्टिफिकेट। ये उसका पार्ट है, राइट, पूरा इंटीग्रल पार्ट है बिजनेस मॉडलिंग। सही। अच्छा सर, आपने जैसे अभी बहुत अच्छी बात कही कि मेरे प्रोग्राम के तवज्जुल से कोई भी आपसे अप्रोच करना चाहे रिगार्डिंग उसके पास कोई बिजनेस मॉडल हो तो आप उसकी फंडिंग करेंगे एंड बिल्कुल वी विल करेंगे। यू विल
डेफिनेटली पार्टनरशिप में होगी, वो वेंचर होगा और दोनों मिलके बिल्कुल कमाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वेंचर ये सिर्फ कैपिटल, हम्म, जी 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 हाँ, आप बोलिए। तुम सबसे पहले समझ लो वेंचर कैपिटल होता क्या है, कौन होता है और कैसे काम करते हैं। पाकिस्तान में अभी लोगों को वेंचर कैपिटल के बारे में नहीं पता, और बहुत सारे लोगों को वीए के बारे में भी नहीं पता। हम्म, तो वीए के बारे में तो बहुत ज्यादा मैंने देखा अभी रिसेंटली, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था, मैं खुद इस फील्ड से था ही नहीं कि मैं वीए वगैरह प्रोड्यूस करूं। तो हमने हमने तो 100% हमने कहा कि जी फ्री कोर्स है। और बाद में हमारे लोगों ने हम्म, कहा सर आप फ्री कोर्स तो करवा देंगे, लेकिन फिर जो लोग कोर्स ले उनका इंटरेस्ट मैच्योर है या नहीं है, तो उन्होंने एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन फीस हम्म, रखी। तो ये चीज अब हम इसमें बताते हैं तुमको ये कि वेंचर कैपिटल क्या होता है। देखो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बाइंग हाउसेज होते हैं। मैं तुम्हें मित्सुबिशी हम्म, का नाम लूँ ना, तो मित्सुबिशी कोई कंपनी नहीं है, बाइंग हाउस। इसका काम ही बाइंग है। ये काम ये क्या करती है कि मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर खरीदती है और उस पर अपने नाम लगा करके फिर बेचते हैं। इसी तरह से बहुत सारी दुनिया की कंपनियां हैं जो बाइंग हाउसेज हैं, जिनका काम ही यही। स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज्यादा पैसा होता है कंपनियों के पास, उसमें मल्टी मल्टी बिलियनर लोग होते हैं। उन्होंने वो बैठे होते हैं बड़ी कंपनियां लेकर के, उनके पास पैसा होता है, लेकिन उनके पास मैन पावर या लगाने की जगह नहीं होती, या इतना सोचने का आइडिया नहीं होता कि क्या करें। टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से तब्दील हो रही है, तो उसको कोप करने के लिए वो कहते हैं कि ठीक है, हम अगर बना नहीं सकते तो हम जो बन रही है उसका पार्ट बन के फायदा जरूर उठा सकते हैं। देखो एक बिजनेसमैन है जिसकी उम्र 60 साल है, 50 55 साल 60 साल हो गई, अब वो उस वक्त जाके पाइथन नहीं सीखेगा। वो उस वक्त जाकर के और जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं सीखेगा। वो कुछ नहीं करेगा, उसके पास पैसा है जी, तो वो क्या करेगा, कहेगा लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, ये इमर्जिंग है। अब ये अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है तो मैं क्यों ना इसका पार्ट बनूं। अब वो पार्ट कैसे बनेगा, वो पैसे से बनेगा। हम्म, तो आपकी मेहनत, उसका पैसा, और फिर ये कंपनी बनती है। तो अब अगर आप झूठे निकले, आप पैसा लेके खा गए तो क्या होगा, ठीक है। अगर उसने आपके साथ बंदे लगा दिए और टेक्नोलॉजी चुरा ली तो क्या होगा। तो उसका तरीकेकार ये होता है कि एक कंपनी बनती है, उस कंपनी में उनके लोग भी डायरेक्टर होते हैं, आपके भी डायरेक्टर होते हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है, बुक कीपिंग होती है। जो बंदा काम कर रहा होता है उसकी एक सैलरी होती है, उसको अपनी सैलरी मिल रही होती है, और सारे काम चल रहे होते हैं, कंपनी तरक्की करती चली जाती है। मैं अभी पाकिस्तान में ही 8 10 कंपनियों के नाम ले सकता हूँ जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, उन्होंने बाहर से 30 मिलियन पाउंड, $30 मिलियन का वेंचर कैपिटल लिया है। एक और कंपनी उसने $2.6 मिलियन का वेंचर कैपिटल लेके कराची में अभी स्टार्ट किया है। और मैं जानता हूँ उन लोगों को, अब मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो कल को कहीं यार आपने हमारी सारी बातें बता दी लोगों को। वो क्लिकी वाला है, उसको अभी $7 लाख उसने जो है ना वेंचर कैपिटल उठाया है। और ये वेंचर कैपिटल क्यों मिलता है, इसके पीछे क्या मकासद होते हैं बड़ी कंपनियों के, वो भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ सारे, कि आपके पैसे को फिर वो लेके चले जाते हैं। देखो अगर मेरे तुम्हारे पास जो है ना मेहनत है, मैंने 25% दे दिया, 75% मैंने अपने पास शेयर रख लिए, ठीक है। फिर मैंने कहा कि आप अपनी आमदनी से अपने शेयर बाय बैक कर सकते हैं मुझसे, और मैं 15 साल का एग्जिट प्लान लेके निकल जाऊंगा, ठीक है। अब आप क्या होता है कि अब आप काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। सही। 2 साल में आपका वेंचर खत्म होने लगता है, फिर आपको मजीद फंडिंग होता है, सेकंड फंडिंग राउंड चलाते हैं। कंपनी स्टेब्लिश हो चुकी हम्म, होती है, फिर इन्वेस्टर आपको पैसा दे देता है, और फिर आप कंपनी चलाते हैं। या तो कंपनी कामयाब हो जाती है, डूब जाती है, ठीक। अगर कंपनी कामयाब हो जाती है तो बाहर से जिसका पैसा आया वो आपका पैसा निकाल के ले जाता है। अगर $100 का प्रॉफिट हुआ है तो $75 वो ले जाता है, वो फिर आपको लूट रहा है। तो कोशिश कीजिए अपने ही लोगों के बीच में काम करते हुए अपने ही पैसों से ग्रो करें, बजाय इसके कि बाहर का वेंचर कैपिटल लेकर के। मगर अगर जरूरी है तो लेकर के भी आए। गवर्नमेंट इसको वेलकम करती है कि फॉरेन एक्सचेंज आ रहे हैं। देखो आते हुए तो तुम देख रहे हो, तुम जाते हुए जो चीजें निकल रही है वो नहीं सुनाई दे रही। आते हुए हम्म, तालियां तो सुनाई दे रही हैं, लेकिन जाते हुए पैसे की जो रोल जो रोना पिट रहा है ना, वो नहीं देख रहे। क्यों वो नहीं। डेफिसिट बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ फूड पांडा जो है ना, उसने अराउंड $2 बिलियन जो है आपके पाकिस्तान से लेके गया है, क्योंकि नहीं ओलेक्स 33 करोड़ की उसकी जो एक्सपोर्ट हुई है पाकिस्तान से, उसने रेवेन्यू लेके दुबई गया, ठीक है। करीम, ये उबर, ये सारे के सारे आपके मुल्क से पैसा लेके जा रहे हैं। तो यार क्या करीम और उबर आप नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बना सकते। बनाइए, उसको इम्पोर्ट कीजिए। तो ताकि आपका पैसा आपके मुल्क में। मैं एक फ्रेंच एम्बेसडर के साथ बैठा हुआ था, तो हम बैठे हुए थे उसमें क्या नाम है अपने ब्रिटिश हाई कमीशन में। तो बैठा हुआ था, हंसने लगा, ऐसी बातचीत, दोस्तियां अच्छी हैं सारी सबसे। तो कहने लगा कि बल्कि मेरे फेसबुक पे देखोगे सारे के सारे लोग तुम्हें नजर आएंगे। उसे कहने लगा कि तुम्हें पता है सईद, मुझे सईद कहते हैं क्योंकि फर्स्ट नेम से पुकारा जाता है ब्रिटिश में और यूके वगैरह में। जी, कहते हैं सईद, देयर इज करप्शन एवरीवेयर, देयर आर हार्डली फ्यू कंट्रीज वेयर द करप्शन लेवल इज लो, बट इट इज देयर।
But the worst thing in Pakistan is this: in France, there are people, correct politicians, but when they do corruption, they keep their money in France. Even if they do it with their brother's name, father's name, somebody else's name, but they keep the money in their country. The worst part of Pakistan is this: when the people, they do corruption, they take the money out of the Pakistan. And that is the element which is basically causing an internal damage to the country. तो अगर मुल्क को तुम्हें तरक्की देनी है, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो पैसा जो मुल्क का है वो मुल्क में रहे. बाहर की कंपनियां आकर के काम करेंगी, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम तालियां बजाते हैं कि जी इतनी फंडिंग आ गई, इतना इन्वेस्टर हमने अट्रैक्ट कर लिया. देखो, दो तरह का इन्वेस्टर है. तुम क्या समझते हो कि क्या हम लोग कनाडा को सपोर्ट नहीं कर रहे? कनाडा कितने इमिग्रेंट बुला रहे हैं? हर जाने वाला इमिग्रेंट 40-50 हजार डॉलर साथ लेके जाता है जब वो मूव करता है. वो अपना घर बेचता है, अपनी गाड़ी बेचता है, सब कुछ बेचता है, डॉलर बनवाता है, लेके जाता है, क्योंकि वहां रहने जा रहा है. उसको पता है पहले 6 महीने मुझे बैठ के खाना पड़ेगा. अगर 1 लाख आदमी जा रहे हैं ना, तो समझो कितना फॉरेन एक्सचेंज उनके मुल्क में आ रहा है. और ये वो फॉरेन एक्सचेंज है, वापस नहीं आना, उन्हीं के मुल्क में रहना है. तो ये अभी जो है यहाँ पर यूरोपीय यूनियन ने केस किया है कंट्री के ऊपर, यूरोपीय यूनियन की कंट्री, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, कि उन्होंने गोल्डन रूट दिया पासपोर्ट का, कि आप 6 लाख डॉलर शो करें, $500,000 शो करें, ले आए मुल्क में, तो आपको फास्ट ट्रैक पे पासपोर्ट मिल जाएगा 6 मंथ में. ईयू कहता है कि आपने पासपोर्ट लेना है नॉट ऑन द बेसिस दैट यू हैव मनी. आपको ईयू का या यूके का पासपोर्ट मिलेगा कि यू शो योर इंटेंट टू लिव इन यूके. तो इसीलिए हमें लाइफ इन यूके का टेस्ट देना पड़ता है. अगर हमको ब्रिटिश नेशनल बनना है, तो जब हमारे पास हमारा टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, तो हमको एक टेस्ट पास करना पड़ता है, इसका नाम होता है लाइफ इन यूके. एक इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है, एक लाइफ इन यूके. इंग्लिश तो डेफिनेटली जो लोग यहाँ रह रहे हैं क्लियर हो ही जाती है, क्योंकि माहौल में हो जाती है. लाइफ इन यूके का मतलब ये होता है यू हैव गॉट इंटेंशन टू लिव हियर, यू वांट टू मेक दिस सॉइल योर कंट्री. तो यूरोप ने जब वो 6 महीने में पासपोर्ट देना शुरू किया, साइप्रस ने देना शुरू किया, चलो ये भी बता देता हूँ, तो उसके ऊपर केस कर दिया यूरोपीय यूनियन ने. अल जजीरा के प्रोग्राम ने उसको आइडेंटिफाई किया. उसने कहा कि ब्लैक मनी वाले लोग आकर के सेकंड पासपोर्ट ले रहे हैं, और हमारा जो इंटेंशन है कि मेक योर लाइफ हियर, वो नहीं. आप चाहे 6 लाख डॉलर ले आए, 10 लाख डॉलर ले आए, आप रहें यहाँ पे, अपने इसको घर बनाएं, इसको उसी तरह देखें जैसे आप अपने घर को देखते हैं, तो सही. पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बाहर निकल के जाने को ज्यादा प्रेफर है. पाकिस्तान में काम करो, एक्सपोर्ट करो, पाकिस्तान में डॉलर इंपोर्ट करो, पाकिस्तान से कोशिश करो कि कम से कम एक्सपोर्ट्स हो और कम से कम इंपोर्ट्स हो. तो डेफिसिट ऑफ जो आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो कम हो गया. दिस इज व्हाट इज नीडेड राइट नाउ. फाइन. अच्छा सर, हाउ टू रीच आउट टू यू, यानी आपसे अगर कोई राब्ता करना चाहे या आपके कंपनी से राब्ता करना चाहे तो किस तरह से हो सकता है ये? सबसे पहले तो तुमसे ही कांटेक्ट कर ले. अब तुम हमारे लिए एक तरह के वर्चुअल एसेट हो, तुमसे कांटेक्ट कर ले, तुम्हारे थ्रू हम तक पहुंच सकते हैं. वरना हमारी कंपनी की वेबसाइट है, एक प्रॉपर LMS उसमें लगा हुआ है, पूरा का पूरा सारी चीजें मौजूद है. फिर हमारी जो अपना ऑफिस है इस वक्त, वो आपके पास यूनिवर्सिटी में एक पूरा फ्लोर है हमारे पास, NH यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां पे आप जाके मिल सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए. फिर हमारे पास हमारी 2 फैक्ट्रियां हैं जहाँ पर हमारे वर्चुअल गेम्स बन रहे हैं. आप वहाँ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे यूके ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरा ईमेल एड्रेस शेयर कर लें, मुझे डायरेक्ट भेज दें, मेरे ऑफिस के अंदर लोग हैं, उनमें से किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं. इज वेरी सिंपल. इज विंसन एजुकेशन, आप सिर्फ गूगल पे लिखे विंसन EDU या विंसन एजुकेशन, यू विल फाइंड अस देयर. या आप लिंक्डइन पे डॉक्टर अली जैदी लिख लें, मैं आपको मिल जाऊंगा वहाँ पे. तो ईजी है. ये भी एक बात होती है कि आपको आप तक पहुंचने के लिए आसानियां कितनी. अब नाउ वी आर डूइंग दिस ऑन अ सीरियस नोट, दिस VA थिंग, क्योंकि अब हमें पता चला है कि बहुत सारे लोग VA के कोर्सेज करा रहे हैं पाकिस्तान में, एंड दे आर चार्जिंग वेरी हैवी अमाउंट्स, बट दे हैव गॉट नो बेसिस. उनकी बेस नहीं है कोई भी, वो सिर्फ एक कोर्स करा रहे हैं और लोग कर रहे हैं. तो हमने जो अभी ये विनवे लेकर के आए हैं, जिसमें कि पेपैल को इंटीग्रेट कर दिया है, वो किस तरह से किया ये समझ लो. वो इस तरह से कर दिया कि हम ब्रिटिश हैं, हमारे पास पेपैल मौजूद है, सब चीजें मौजूद है, हमारी कंपनी विनपे यूके में रजिस्टर्ड है एज अ बिजनेस के. हम कोई भी अमाउंट पेपर से रिसीव कर सकते हैं. आपको पाकिस्तान में पैसे चाहिए तो आप क्या करेंगे, हमने पाकिस्तान में भी फाइनेंशियल अथॉरिटी स्टेट बैंक से इस चीज को वो करवा लिया है. अब होगा ये कि जैसे ही आपको आपकी कोई सर्विसेज आई हैं, आपने हमें गुड्स भेजी, आपने कहा सर ये हमारी जीन्स है, 100 जीन्स है, ये हमने बेचनी है, हमने वो 100 जीन्स eBay पे यहाँ लगा दी, वो बिक रही है, अब उनकी पेमेंट आपको जानी है.
तो जैसे ही जीन्स बिकती है उसकी पेमेंट फॉरन पेपैल के थ्रू अकाउंट में आ जाती है। जो अकाउंट में हमारे अपेयर होती है तो उसी लम्हे यानी विद इन 1 सेकेंड आपके विनबे के अकाउंट के अंदर वो पैसे आपको अपेयर हो जाएंगे एंड यू कैन ड्रॉ एंड यू कैन यूज दैट मनी। तो ये हमने बहुत ही सिंपल बना दिया। तो जो बाकी बीए वगैरह करा रहे हैं वो बीए कराने के बाद ये कहते हैं अब आप ऐसा करें कि आप नेट पे तलाश करें, आपको क्लाइंट मिल जाएगा, या वो कुछ क्लाइंट आपको बता देते हैं। तो उसमें भी मैं तुम्हें बता दूं, ईबे का अकाउंट आप यूके में नहीं खोल सकते, यूएस में पाकिस्तान से बैठ के नहीं खोल सकते, पेपैल का अकाउंट नहीं खोल सकते। आप अकाउंट रजिस्टर्ड कर लेंगे मगर आप कुछ बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पेमेंट मॉडल नहीं है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ईबे का जब आप अकाउंट खोलते हैं तो फॉर फर्स्ट 5-6 मंथ आप सिर्फ 10 आइटम सेल कर सकते हैं, या आप खरीद दो जितने भी चाहे खरीद लें, लेकिन आप बेच सकते हैं सिर्फ 10 आइटम। आप 10 से 11 उनकी रिस्ट्रिक्शन है, और वो $500 500 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और उसका पेमेंट मेथड जो है ना अलावा जो है पेपैल के नहीं, और 21 दिन के बाद वो आपको पेमेंट देते हैं। दे विल कीप द मनी फॉर 21 days with them until and unless the goods delivered received by the client, by the buyer, और बायर आपको उसका पॉजिटिव फीडबैक ना दे दे। जब वो बायर का पॉजिटिव फीडबैक आता है तो जाके कहीं जो है ना ये केस क्लोज होता है, और उसके बावजूद वो फर्स्ट न्यू कमर्स को 21 डेज तक अपने पास पैसे रखते हैं। तो आप ये भूल जाइए ये सब ख्वाब हैं सारे। कहे कि जी हम ये कर रहे हैं तो हम ये कर लेंगे सारे, नहीं। अगर पीछे कोई प्रॉपर बड़ी कंपनी नहीं है, जैसे अब हमारे साथ है, हम शेयर कर सकते हैं कि हमारी पेमेंट, हमारी चीज जैसे ही बिकती है हमारी फुल पेमेंट हमारे अकाउंट में आ जाती है। क्यों? क्योंकि वी हैव गॉट अ ट्रस्टेड रिलेशनशिप ऑफ 8 to 10 years with PayPal, with eBay, and we have sold many things and we have got 100% positive feedback from our बायर्स, जिन्होंने 100% पॉजिटिव फीडबैक दिया है कि जिसमें आपके पास डिलीवरी ऑफ गुड्स टाइम पर हुई है, पैकेजिंग टाइम पर है, एज टोल्ड है, कोई इसमें झूठ नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। अब अगर एक ऐसी कंपनी के साथ आप अटैच है तो आपकी प्रोडक्ट तो बिक जाएगी। अगर आपने एक नया अकाउंट बनाया या किसी का अकाउंट यूज करके करना शुरू किया और उसने डिलीवर नहीं किया तो आपके ही पैसे जाएंगे उसके, आप यूके आकर के उस पर केस कर नहीं सकते, तो फायदा कोई नहीं। until and unless you have somebody who is basically who owns some stakes with you, then only it is possible, वरना ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक कल्चर है जिसको अभी हमने प्रॉपरली वो लेकर के आना है कि हमने लोगों को समझाना है कि किस तरह से काम होगा, और फिर एग्रीमेंट इस तरह से करने के जो यहाँ का बंदा जो आपको काम दे रहा है उसका एग्रीमेंट किसी, जैसे हमारी कंपनी इस तरह की कंपनी से हो, ताकि हम उसको लीगली परसू कर सके इन केस अगर वो आपको डिफॉल्ट करता है, और वो चीज हो सके ताकि आपने जितनी मेहनत की आपको उसका फल मिले और आपको उसका समर मिले। और जो बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग में मार खा रहे हैं वो इसीलिए खा रहे हैं कि जब पेमेंट का वक्त आता है अगली पार्टी पेमेंट नहीं देती और आप कुछ कर भी नहीं सकते, आप तो यहाँ बैठे हैं। तो और आपके ना फ्रीलांसर, ना फाइवर पाकिस्तान में मौजूद है, ना फ्रीलांसर मौजूद है, ना अपवर्क मौजूद है, कोई भी नहीं है। और ना ही वो मौजूद है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों ने वीडियोस बनाई के पैसे कमा रहे हैं, जिसे कहते हैं फ्लाइंग एड फ्लाई एड फ्लाई जो है वो भी आपको वो छोटा वो करके देती है, शॉर्ट करके देती है यूआरएल, तो उस पर आपको पैसे मिलते हैं। वो पैसे मिलेंगे कब, मिलेंगे कैसे, ये नहीं सोचते लोग। वो समझते हैं बस आज हमने शुरू किया कल मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है ताकि लोगों को रियल नॉलेज मिले, असल बात पता चले, असल नॉलेज मिले, धोखा ना खाएं। क्योंकि टाइम है ना, हर शख्स की कीमत, हर शख्स के टाइम की कीमत है, तो वो टाइम लगा रहा है तो वो भी एक कीमत है। अगर वो सिर्फ ये नहीं होता कि मैं तुमसे 100 रुपए की चीज लेके भाग जाऊं तो 100 का नुकसान हुआ, मैं तुम्हें अगर ये तुम्हारे 2 घंटे भी जाया करता हूँ तो भी तुम्हारा नुकसान है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है सिखानी है। तो मेरा मिशन थोड़ा सा अलग है। मेरा मिशन मैं बहुत क्लियर बता दूं, पाकिस्तान में मुझे 1000 वेंडर्स बनाने इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिनके पास पिक एंड प्लेस मशीन हो, जो लेटेस्ट मशीनों पे काम कर रहे हो, जो पीसीबी डिजाइनिंग जानते हो, कंपोनेंट लेयर पे चीजें काम करने जानते हो। हम यहाँ पे मॉसफेट की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगा रहे हैं। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स आ रही हैं बड़ी जो कि हाई ग्रिड से रिलेटेड है, पाकिस्तान में बिजली की कमी है उसके लिए, तो फिर वही वेंडर्स हमारे सप्लाई चेन बनेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, किसी भी मुल्क की बैकबोन उनका वेंडर होता है। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स के फैक्ट्रियां घरों में लगी, वहां से जो प्रोडक्ट बन के जाए वो सब जाए। हद ये कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोबाइल फोन के सिलिकॉन कवर तक नहीं बनते, हद ये। और उसको बनाने के लिए भी जरूरी है कि अब आपको चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको एक दफा पता चल गई तो, मैं एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें। एक आर्डिनो बोर्ड आता है, बहुत ज्यादा सेल होता है, ठीक है। तो जब क्योंकि बहुत ज्यादा सेल होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि
एक सेकंड, मेरी बैटरी थोड़ी सी लो हो रही है, चार्जर लगाना पड़ेगा। एनीवे, तो बेसिकली क्या होता है कि जब वो बहुत ज्यादा वो जो आर्डिनो बोर्ड है ना बहुत ज्यादा बिकता है, 650 रुपए का, उसकी कॉस्ट आती है 350 रुपए। अगर एक आदमी सिर्फ 1000 बोर्ड बनाए और 200 रुपए बचे, 2 लाख रुपए बचते हैं। अब बताओ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर क्यों नहीं करते ये काम? इसलिए कि उनको गाइडलाइन नहीं दी जा रही। अगर उनको गाइडलाइन दे दी जाए तो वो हर शख्स बैठ के घर में, और मिलियंस की तादाद में बिकते हैं। मुझे तो, मैं यूके में बेचूंगा, यूरोप में बेचूंगा, यूएसए में बेचूंगा, तो मुझे चाइना से 100 रुपए कम में दे दो। बिल्कुल क्वालिटी नहीं बना सकते वो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। काम नहीं आता वो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। ट्रेनिंग लो, सीखो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो। पैसे भी दे रहा हूँ प्रोडक्ट के, पहले पैसे दे रहा हूँ। आपने बनाना है, आपकी मुझे लेबर चाहिए, आपको ट्रेन करूंगा, आपसे लेबर लूंगा, काम लूंगा, लेके चला जाऊंगा। अगर मैं ये करने में कामयाब हो गया तो मैं मुल्क के लिए सबसे बड़ा काम कर दूंगा। मेरा अपना ख्याल ये वीए बिल्कुल वगैरह अच्छा। तो ये तो सिर्फ लो इनकम लोगों की सपोर्ट है। उसमें भी जो लोग अब अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम गारंटी कर रहे हैं जॉब्स की। चलो, तुम्हारे प्रोग्राम के हवाले से ये भी तुम्हें एक बात बता दूं, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई चीज बिकेगी ना, तो मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि वो ऐसी कमोडिटी होनी चाहिए जो हर घर की जरूरत हो, और हर घर की जरूरत है ग्रोसरी। अगर आपको सेल करना है ना ऑनलाइन और पैसे भी कमाने हैं, तो आपको ऐसे ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे जो कि आप ग्रोसरी ऑनलाइन बेच रहे हो। ठीक है? और बहुत सारे लोग ये काम शुरू कर चुके हैं, मगर हमारे तवज्जो से लो कॉस्ट के अंदर बल्क बाइंग की वजह से, अगर आप अपने घर में 10,000 रुपए की ग्रोसरी पूरे महीने में खरीदते हैं और वो 8,000 में आपको मिलने शुरू हो जाए, और मेरा वीए वो बेच रहा हो और उसको सिर्फ 10% बच रहा हो, तो वो 15 से 20,000 रुपए महीने कमा सकता है। ये एक जस्टिफाइड इनकम है फ्रॉम होम। आप इसको ये मत समझिएगा कि बहुत ज्यादा, हाँ आपने बाहर की चीजें भी बेचना शुरू कर दी, आपने जीन्स भी बनाना शुरू कर दी, आपने कुछ और भी शुरू कर दिया, तो आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। एंड वन डे मे बी यू डोंट नीड अ जॉब, यू विल बी डूइंग ओनली दिस। ठीक ट्रू। है? तो ये है सारा सिलसिला भाई। सही। नहीं, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा समझाया सर। और लिटरली अब लोगों के लिए कोई बहाना होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई बहुत कम बोलता है कि भाई सीख लो, उसके बाद जॉब पक्की है। नहीं जॉब करनी तो बिजनेस तो डेफिनेटली रखा हुआ है आपके लिए। तो आई डोंट थिंक सो अब कोई ऐसा बहाना होना चाहिए। तो इसी के साथ जो है वो इस प्रोग्राम को इख्तिताम पे लेके जाएंगे। और आप लोगों को बताता चलूं कि इफ यू नीड एनी असिस्टेंस, गो टू नजीर हुसैन यूनिवर्सिटी, विंसन टेक्नोलॉजी एंड विंसन एजुकेशन इज देयर। वहां पर स्टाफ मौजूद है सेकंड फ्लोर पे। प्लीज जाके एक सरप्राइज विजिट दें, मिलें लोगों से, सीखें, देखें वहां पर क्या हो रहा है, और शुरू करें अपना काम। यानी मेहनत में अजमत है, हरकत में बरकत है। तो हरकत बिल्कुल। करें बराए मेहरबानी। पाकिस्तान को आज जरूरत है इस हरकत की। ठीक है। इसी के साथ जो है अपना प्रोग्राम एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का। थैंक यू, सो नाइस थैंक टू यू, मीट यू। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू एवरीवन फॉर द लिसनर्स। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।